Very good morning, 10th class. How are your studies going on? Okay, उससे पहले how did you celebrate your festival, Eid and Raksha Bandhan? I hope you enjoyed with your family. Yes, but with full safety and precautions. ईद मनाई, राखी भी मनाई, सिबलिंग्स के साथ enjoy भी किया, कज़न्स के साथ enjoy भी किया. अब let's come back to our lesson. Studies must go on. So, coming to our lesson once again, we were studying the first chapter of our history textbook, The Nationalism in Europe, and just a recap of the previous day class. We have learnt about Napoleon, that he became the monarch of France and he introduced many administrative reforms, popularly known as the Civil Code of 1804 or the Napoleonic Code. ये पढ़ा था हमने. Then various reforms we discussed. What were the various reforms that were carried out by Napoleon, and they were very good. Generally for the common people, slavery was removed, guild restrictions were removed, standardized weights and measures and everything. The people were very happy. French people का reaction देखा. The businessmen, the peasants, the artisans, they were very happy with these reforms. It became easy for them to carry out business activities. Peasants got their own land. They started doing their own farming and all. Then he introduced these same reforms in the territories that he had conquered. The reaction of those people, first they were very happy to welcome French armies into their cities and kingdoms, but soon they became enemy to French because instead of bringing democracy in those areas, Napoleon merged them into his own territory or his own empire. So up till now we have read about what was happening in France. But as we are talking about nationalism in Europe, so now our topic comes the making of nationalism in Europe. Now let's talk about the whole of Europe. Remember the starting or the introduction of this lesson where we have discussed about nation states. I told you that Europe had many big empires and these empires broke up into nation states. तो बच्चों अभी हम नेशन स्टेट्स की बात करेंगे कि ये कैसे बनी. तो फर्स्ट वी नीड टू डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ दोज एम्पायर्स. कैसे वो एम्पायर्स बनी हुई थी. द एम्पायर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हैब्सबर्ग एम्पायर. ये भी एक बहुत बड़ी एम्पायर थी यूरोप की. तो ये एज अ एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू रीड हियर, बट द अदर एम्पायर्स वर फॉर्म्ड ऑन द सेम लाइन्स. सारी तो हम डिस्कस नहीं कर सकते ना. देयर वर सो मेनी एम्पायर्स, वी कांट डिस्कस ऑल ऑफ देम हियर. So we are going to discuss one empire that was a very big empire, that is Habsburg Empire, and later how it broke up, ये हम आगे lesson में पढ़ेंगे, and various nation states were born. लेकिन अभी we are going to discuss the formation of Habsburg Empire. So let's begin our lesson, the making of nationalism in Europe. So if you look at the map of mid-18th century Europe, you will find that there were no nation states as we know them today. आज और यही nation states of course आज क्या कहलाते हैं, modern states. So उस समय का अगर हम मैप देखेंगे mid-18th century Europe, there were no nation states. क्या थी उस समय? सिर्फ big empires were there, and that one empire we are going to discuss it. What we know today as Germany, Italy and Switzerland, जो कि आज ये modern states हैं, were divided into kingdoms. ये empires थे, countries, big countries, empires. They were kingdoms.
किंगडम्स डिवाइडेड इनटू डचीज, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे, अंडरलाइन कर लो. किंगडम्स डिवाइडेड इनटू डचीज एंड कैंटन्स, छोटे छोटे एरियाज जिनके छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स, इनके जो लॉर्ड्स होते थे, किंग्स होते थे स्मॉल, दे वर नोन एज फ्यूडल लॉर्ड्स. सो दे वर किंगडम्स, then duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories. ये जो feudal lords थे, they were all powerful. ये अपने decisions खुद लेते थे. एक emperor होता था, लेकिन ये feudal lords अपने आप में autonomous का मतलब free to take their own decision. इनकी territories थी. Now underline करो, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप व अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज. लेकिन ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप इज़ अ वेरी बिग कॉन्टिनेंट ऑफ कोर्स, तो जो ईस्टर्न यूरोप था और सेंट्रल यूरोप था, वहाँ पर ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स थे. फ्यूडल लॉर्ड्स की कोई बात नहीं चलती थी. ऑटोक्रेटिक मीन्स लाइक डिक्टेटर, है ना. ये मोनार्क्स थे जो रूल करते थे एंड दे वर वेरी स्ट्रिक्ट इन देयर कंट्रोल. कौन से एरियाज में? ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में. विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल्स, डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस, है ना. ये बोलने वाले लोग उन एम्पायर्स का हिस्सा होते थे. तो पूरी एम्पायर में एक लैंग्वेज या एक रेस के लोग नहीं रहते थे. डिफरेंट पीपल वर लिविंग इन दोज एम्पायर्स. दे डिड नॉट see themselves as sharing a collective identity or a common culture. कोई भी एक पहचान नहीं थी. Though they were a part of one empire, वो एक ऑटोक्रेटिक मोनार्क होता था उनका, लेकिन जो लोग उस एम्पायर में रहते थे उनके बीच में कोई भी कॉमननेस नहीं थी. They were diverse populations, different races, different languages, हाँ, डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. तो ये सब एक एम्पायर में रहते थे. ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, डिफरेंट रेसेस, सब अलग अलग था. सी, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन सच एम्पायर, दैट इज हैब्सबर्ग एम्पायर. द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी. आज का अगर आप मैप देखोगे, पॉलिटिकल मैप यूरोप का, इफ़ यू आर गोइंग टू सी मॉडर्न डेज मैप, तो जहाँ पर ऑस्ट्रिया और हंगरी है, वो मेन हैब्सबर्ग एम्पायर का सेंटर था. कौन सी एरिया? ऑस्ट्रिया हंगरी. लेकिन उस समय नाम क्या था इसका? हैब्सबर्ग एम्पायर. फॉर एग्जाम्पल, वॉज अ पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल. हैव यू सीन समथिंग लाइक पैचवर्क? पता है आपको पैचवर्क क्या होता है ना. सड़क पर जाना अभी बरसात के बाद, क्या दिखेगा आपको? पैचवर्क. जहाँ गड्ढा होता है वहाँ पर होल दैट इज फिल्ड विथ स्टोन एंड सैंड एंड एवरीथिंग. तो एक स्मूथ रनिंग रोड नहीं होती है, बीच बीच में हमें उस पर पैचेस दिखाई देते हैं. तो ऐसे ही द हैब्सबर्ग एम्पायर एक कंप्लीट यूनाइटेड एम्पायर नहीं थी. It was a patchwork of various places, various areas, अलग अलग regions और अलग अलग people speaking different languages. देखो अब क्या क्या regions है, ये हम हैब्सबर्ग एम्पायर में देखेंगे. If you want, you can keep a map of modern day Europe और वहाँ देखना ये areas कौन कौन से हैं. The Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and peoples. It included the Alpine region, आज का मॉडर्न डे में जो एल्पाइन एरिया है, द टायरोल, ऑस्ट्रिया में है ये सब, ऑस्ट्रिया एंड द सुदातन लैंड, ये इसमें इंक्लूडेड थे, एज वेल एज बोहीमिया. अब बोहीमिया जहाँ पर एरिस्टोक्रेसी मीन्स द रिच क्लास, द लैंडलॉर्ड क्लास, दे वर प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग. तो बोहीमिया जो एक एरिया हैब्सबर्ग एम्पायर में था, यहाँ की जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, दे यूज टू स्पीक जर्मन लैंग्वेज. एरियाज भी देखो हमें बहुत सारे मिलेंगे और लैंग्वेजेस भी, है ना. जस्ट रिमेंबर, सो बोहीमिया वेयर द रिच क्लास स्पोक जर्मन लैंग्वेज. फिर और एरियाज,
It also included the Italian speaking provinces of Lombardy and Venetia. आज इटली में ये दो provinces हैं, Lombardy and Venetia, where the people spoke Italian language. तो regions भी हो गए हमारे पास अलग अलग और languages भी हो गई, German and Italian speaking. Then in Hungary, half of the population spoke Magyar. ये वहाँ की एक लोक लैंग्वेज थी, तो एक और लैंग्वेज आ गई हमारे पास, मैग्यार. आधी पॉपुलेशन तो क्या बोल रही है हंगरी में? मैग्यार. while the other half spoke a variety of dialects. What are dialects? Local languages. They were not speaking any major language, लेकिन जो बोलियाँ होती है ना अलग अलग, लाइक हाड़ोती, हाँ, मारवाड़ी, मेवाड़ी, what are these? They are dialects, local dialects. So the people, they didn't spoke any major language, but half of the population spoke different dialects. तो हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर अलग अलग dialects बोली जाती थी. Then in Galicia, another region, the aristocracy spoke Polish language. कितनी languages हो गई देखो. German speaking people are there, Italian speaking people are there, Magyar is spoken and Polish language. Besides these three dominant groups, German speaking, Italian speaking and Polish speaking people, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant peoples. Mass means a large number of subject peasants, जो अपने लैंडलॉर्ड के गुलाम होते थे, वो ज़्यादातर पॉपुलेशन थी. तो रिच क्लास भी है, फ्यूडल लॉर्ड्स भी हैं और पीजेंट्स भी हैं, who are dependent, who are like slaves to their landlords. Bohemians and Slovaks to the north. अब ये वो peasants हैं देखो. Slovenes in Carnolia, Croats to the south and Romans to the east of Transylvania. So these were the various regions and these were the various races. सिर्फ languages ही different नहीं है बच्चों. The people of various races are also living in the empire. लगाना पढ़ने में बहुत difficult है. कितनी सारी languages, कितने सारे regions, कितनी सारी races. Just imagine the complexity of the empire at that time. इतने varieties हैं इन empires में. And here we are reading about only example of one empire, Habsburg Empire. All empires in the Europe were formed in the same way. Different languages, different races, different regions. ऐसे इसे कहते हैं पेच वर्क. एक वहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ, ऐसे एरियाज थे. So these were the formations, how these empires were made. Such differences did not easily promote a sense of political unity. कैसे एक अपने आप को united feel करेंगे people? They can't even understand the language of each other. At the time of crisis, मान लीजिए हैब्सबर्ग एम्पायर पर किसी और एम्पायर के किंग ने अटैक किया. वॉर्स वर वेरी कॉमन एट दैट टाइम. तो अगर अटैक होता भी था एंड सोल्जर्स इन द आर्मी वर फाइटिंग, दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स लैंग्वेज. ऐसे में कैसे अपने देश के लिए कोई कुछ करेगा? Such differences did not easily promote a sense of political unity. तो रह रहे हैं एक किंगडम में, बट पॉलिटिकली दे वर नॉट यूनाइटेड. एक कंट्री, एक एम्पायर वाली फीलिंग नहीं थी. द ओनली टाई बाइंडिंग, इसे अंडरलाइन करो, द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स, डाइवर्स रेसेस, डाइवर्स लैंग्वेजेस, डाइवर्स रीजन्स टुगेदर वॉज, सिर्फ किसने इनको आपस में जोड़ के रखा था? अ कॉमन एलिजेंस टू द एम्परर, कि इन सब का राजा एक होता था. जो वफादारी होती है, जुड़ाव होता है अपने किंग से, वो सबका एक था. दैट ही इज आ किंग. जर्मन्स के लिए भी किंग है, तो इटालियंस के लिए भी किंग है, हाँ, मैग्यार स्पीकिंग पीपल के लिए भी है, पोलिश स्पीकिंग पीपल के लिए भी है. दैट दे हैव वन कॉमन एम्परर. इस एक कॉमननेस के अलावा देयर वॉज नथिंग कॉमन अमंग द पीपल लिविंग इन वन एम्पायर. सो यू अंडरस्टूड नाउ हाउ दीज एम्पायर्स वर मेड इन यूरोप.
हैब्सबर्ग का हमने एग्जाम्पल पढ़ा, लेकिन सारी एम्पायर्स जो भी यूरोप में थी, दे वर फॉर्म्ड इन सच अ वे. दिस वॉज वन एग्जाम्पल हियर. हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज. तो ऐसे ही अब हम आगे समझेंगे कि सच टाइप ऑफ एम्पायर्स वे पीपल हैव नो कॉमन थिंग अमंग देम, अलग लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, अलग रेसेस के हैं, अलग रीजन्स के हैं, इनके बीच में ये आइडिया कैसे डेवलप हुआ टू हैव देयर ओन नेशन स्टेट. आज क्या कहेंगे बच्चों हम नेशन स्टेट को? अ कंट्री. टू हैव देयर ओन कंट्री. दिस इज आवर लेसन. आगे का सारा लेसन हम ऐसे ही पढ़ेंगे. ठीक है, तो दैट विल स्टार्ट टुमारो विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन कीप रीडिंग.